आज हम करेंगे इंग्लिश ओलंपियाड 23-24 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको एरर बताना है और हमको सेंटेंस दिया है, लुक एट दोज ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज इन द गार्डन एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब यहाँ पे एरर ढूंढते हैं। लुक एट दोज बिल्कुल ठीक है, ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज ये भी ठीक है, इन द गार्डन विद एक्सक्लेमेटरी मार्क ये भी ठीक है। जब भी हम कुछ एकदम से वाव चीज़ हमको दिखती है तब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। और ऑप्शन डी दिया है नो एरर, तो इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। लुक एट दोज ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज इन द गार्डन इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको बताना है कॉन्ग्रेचुलेट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, और कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना। ऑप्शन ए देखो, इसमें कॉन्ग्रै GRA तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। बी देखो, कॉन की जगह यहाँ पे CON हो गया है, ये भी नहीं है। सी देखो CON कॉन, ग्रै GRA, TULATE लेट, कॉन्ग्रेचुलेट, तो ये वाली करेक्ट स्पेलिंग है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ब्लॉसम की। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, और ब्लॉसम की करेक्ट स्पेलिंग होती है BLOSSOM। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको साइनोनियम बताना है वियरी का। तो पहले वियरी का मतलब क्या होता है, थका हुआ। अब साइनोनियम मतलब सेम मीनिंग वर्ड। ऑप्शन देखो, एजिटेटेड, हैप्पी, फ्रेश, टायर्ड। तो थका हुआ वियरी, और टायर्ड भी थका हुआ, तो टायर्ड होगा इसका साइनोनियम। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको एंटोनियम बताना है फ्रेजाइल का, और फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, कमज़ोर। अब इसका एंटोनियम मतलब ऑपोजिट। ऑप्शन देखो, फाइन, ड्यूरेबल, वीक, ब्रेकेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है मजबूत, और फ्रेजाइल कमज़ोर, तो कमज़ोर का ऑपोजिट हो गया मजबूत, यहाँ पे आ जाएगा ड्यूरेबल। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के लिए हमको एक बड़ा सा पैसेज दिया है, इसको रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो मेरे साथ आप भी पैसेज को रीड करो। लुइस पेस्चर वॉज अ केमिस्ट। He was born in 1822 in a town in France. His parents were not rich. He did, however, receive a solid education. He earned a scientific degree. His chemistry grades were not great, but he persisted in his study of chemistry due to his interest in the subject. He spent a lot of time in the laboratory. He was constantly examining the germs under a microscope. He was made of fun by his professor. They were useless to a man. Why are you wasting your time? The professor said. But Pasteur replied, Sir, germs cause sickness. I must find out what kind of germs cause which disease. Where do germs come from? Questioned his professor. Sir, that I must find out, replied Pasteur. And after much hard work, Pasteur learned the truth. Water, dust, dirt, and even the air we breathe contain germs. These germs turn milk sour. Milk is a germ carrier. Disease like typhoid, tuberculosis can be brought by these germs. He experimented a lot. Finally, he found out how to kill the germs in the milk. Pasteur didn't work just on milk. He carried on his research. The disease rabies, diphtheria, and anthrax were all terrible. Pasteur discovered certain vaccinations. These vaccinations were able to both stop and prevent these horrible illnesses. One day, Joseph's mother brought him to Pasteur. A crazy dog had bitten Joseph. He was 14 years old and had multiple wounds. The dog had rabies. Everyone felt bad and sorry for the young boy. They said the child is sure to die. Even Pasteur had no hope, but he had decided to save the boy. Pasteur had prepared a serum from a rabbit. The rabbit had died of rabies. He injected the serum into the boy's body, at first in small quantities. He increased the dosage gradually. On the 9th day, Joseph showed improvement. He was out of danger. In 3 months, Joseph walked out of the hospital. He then became a perfectly healthy child. It was year 1885. Mad dogs have bitten many people, but nobody had managed to escape death. Since 1885, numerous lives have been saved by anti-rabies medication. The entire world owes Louis Pasteur gratitude. By our opinion, Louis Pasteur is regarded as France's finest scientist. अब हमने इस पैसेज को एक बार और पढ़ना है, फिर ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो वो पैसेज आप पढ़ना, मैं आगे क्वेश्चंस पे जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है,
वाई वॉज पेस्चर मेड फन बाय हिज प्रोफेसर, उसका प्रोफेसर उसका फन मजाक क्यों उड़ाता था? क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर हमेशा जर्म्स देखता रहता था, इसीलिए उड़ाता था ना उसका मजाक। तो इसमें कहाँ है ये वाला ऑप्शन? ऑप्शन बी, बिकॉज ही यूज टू एग्जामिन जर्म्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। ए, disease like typhoid, tuberculosis can be brought by the germs present in air, water and dust etc. हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी पैसेज में भी पढ़ा था ना, वहाँ भी लिखा था कि डिजीज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस कैन बी ब्रॉट बाय द जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर, वाटर, डस्ट। अब बी देखते हैं। पेस्चर डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन ओनली फॉर रैबीज, सिर्फ रेबीज की वैक्सीनेशन नहीं, उन्होंने और भी कई सारे डिजीज के लिए काम किया था एंड ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। सी, पेस्चर डिड नॉट वॉन्ट टू सेव द बॉय एज ही हैड बीन बिटन बाय अ मैड डॉग, नहीं, ही वॉन्टेड टू सेव द बॉय। पेस्चर हैड प्रिपेयर्ड वैक्सीन फ्रॉम मंकी एंड रैबिट ब्लड, नो, सिर्फ रैबिट ब्लड से बनाया था। तो ये तीनों रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पेस्चर इंजेक्टेड डैश प्रिपेयर्ड बाय हिम इनटू द बॉयज बॉडी, पेस्चर ने बॉय की बॉडी में क्या डाला था? पॉइजन, नीडल, सीरम या ब्लड? उन्होंने बॉय की बॉडी में सीरम डाला था, जो कि उन्होंने रैबिट से बनाया था, जो कि रैबिट मर गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर जोसेफ टू बिकम अ हेल्दी चाइल्ड अगेन? ऑप्शन दिया है 9 days, 3 years, 19 days, 3 months। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 9 days में उसने सिर्फ इम्प्रूवमेंट दिखाया था एंड ही वॉकड आउट ऑफ द हॉस्पिटल 3 months, तो 3 महीने लगे थे उसको बिल्कुल ठीक होने में। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड थैंकलेसनेस। थैंकलेसनेस का मतलब जब आप किसी को आभार व्यक्त नहीं करते। अब यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हैं, ग्रैटिट्यूड, टेरिबल, परसिस्टेड, इंटरेस्ट। आप पैराग्राफ, लास्ट वाले पैराग्राफ में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द एंटायर वर्ड ओज लॉइस पेस्चर ग्रैटिट्यूड। हम सब उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने साइंस में इतना अच्छा काम किया। तो ग्रैटिट्यूड जो है वो थैंकलेसनेस का ऑपोजिट वर्ड है। और क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब। बाय बाय।